آئندہ عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق اہم ترین معاملات طے ہو گیا۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست جاری کر دی۔ ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت حلقہ بندیاں مکمل کی گئی ہیں۔ قومی اسمبلی کی جنرل نشستوں کی تعداد 266 ہوگی۔ الیکشن کمیشن پنجاب اسمبلی میں جنرل نشستوں کی تعداد 297 ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق سندھ اسمبلی میں جنرل نشستوں کی تعداد 130 ہوگی۔ کے پی کے اسمبلی میں جنرل نشستوں کی تعداد 115 ہوگی۔ بلوچستان اسمبلی کی جنرل نشستیں 51 ہوں گی۔ پنجاب میں قومی اسمبلی کی 141، سندھ میں 51 نشستیں ہوں گی، جبکہ کے پی کے میں 45، جبکہ بلوچستان میں قومی اسمبلی کی 16 نشستیں ہوں گی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں قومی اسمبلی کی 3 سیٹیں ہوں گی۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے تمام تر تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ آئندہ عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق اہم ترین معاملات طے ہو گیا۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست جاری کر دی ہے۔ ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت حلقہ بندیاں مکمل کی گئیں۔ قومی اسمبلی کی جنرل نشستوں کی تعداد 266 ہو گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پنجاب اسمبلی میں جنرل نشستوں کی تعداد 297، سندھ اسمبلی میں جنرل نشستوں کی تعداد 130، کے پی کے اسمبلی میں جنرل نشستوں کی تعداد 115 ہوگی، جبکہ بلوچستان اسمبلی کی جنرل نشستیں 51 ہوں گی۔ پنجاب میں قومی اسمبلی کی 141، سندھ میں 51 نشستیں ہوں گی، کے پی کے میں 45، جبکہ بلوچستان میں قومی اسمبلی کی 16 نشستیں ہوں گی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں قومی اسمبلی کی 3 سیٹیں ہوں گی۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ موسٹرن سپیڈ لاہور کا چوتھا میگا منصوبہ بھی مقررہ مدت سے پہلے مکمل۔ اکبر چوک فلائی اوورز کو 10 ماہ کی بجائے 7 ماہ سے بھی کم مدت میں مکمل کر لیا گیا ہے۔ صوبائی دارالحکومت میں عام ٹریفک کے لیے بننے والا یہ سب سے طویل فلائی اوور ہے۔ منصوبے کی تکمیل سے وحدت روڈ تا پیکو روڈ سگنل فری کوریڈور بن گیا ہے۔ صوبائی دارالحکومت کا چوتھا میگا پروجیکٹ بھی مقررہ مدت سے پہلے پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ اکبر چوک فلائی اوور منصوبے کی مدت تکمیل 10 ماہ مقرر کی گئی۔ رواں سال ہونے والی شدید بارشوں کے باوجود منصوبے کو مدت تکمیل سے پہلے مکمل کر لیا گیا۔ اکبر چوک پر 1.1 کلومیٹر کے 2 فلائی اوورز اور 10 پروٹیکٹڈ یو ٹرنز بنائے گئے ہیں۔ صوبائی دارالحکومت میں عام ٹریفک کے لیے بننے والا یہ سب سے طویل فلائی اوور ہے۔ منصوبے کی تکمیل سے وحدت روڈ تا پیکو روڈ سگنل فری کوریڈور بن گیا ہے۔ اکبر چوک، شوق چوک، جناح ہسپتال، ماڈل ٹاؤن لنک روڈ، کچا جیل روڈ، پیکو روڈ اور مادر ملت سمیت 10 مقامات پر پروٹیکٹڈ یو ٹرن بنائے گئے ہیں۔ کالج روڈ، پیکو روڈ کے اطراف میں ٹریفک کا دیرینہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ منصوبے سے یومیہ تقریباً 2.5 لاکھ گاڑیوں کو آمد و رفت میں آسانی ہوگی۔ اس سے قبل بیدیاں انڈر پاس، شادہ فلائی اوور اور کیولری انڈر پاس کو ریکارڈ مدت میں مکمل کر کے ٹریفک کے لیے کھولا جا چکا ہے۔ منصوبے میں ایک درخت بھی نہیں کاٹا گیا بلکہ 285 درختوں کو محفوظ بنایا گیا ہے۔ منصوبے کے اطراف میں 300 نئے درخت بھی اضافی لگائے گئے ہیں۔ کیمرہ مین افتخار حسین کے ساتھ درین ایاب، سٹی 42، لاہور۔ بارش نے سموگ کی چھٹی کرا دی، اب سکول کے بچوں کی چھٹی منسوخ۔ جمعے کو سرکاری سکول کھلے رہیں گے، تعلیمی اداروں میں نان سٹاپ پڑھائی ہوگی۔ محکمہ ایجوکیشن نے صاف بتا دیا۔ پنجاب میں 18 دسمبر سے موسم سرما کی تعطیلات کا بھی اعلان، جبکہ تعلیمی ادارے 1 جنوری تک بند رہیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا ٹویٹ، لکھا کہ سموگ کی صورتحال بہتر ہوئی، فی الحال کسی پابندی کا ارادہ نہیں۔ ایئر کوالٹی انڈیکس بھی تیزی سے بہتر ہونے لگا ہے۔ بارش نے سموگ کی چھٹی کرا دی، جمعے کو سرکاری سکول کھلے ہوں گے، تعلیمی اداروں میں نان سٹاپ پڑھائی ہوگی۔ محکمہ ایجوکیشن نے صاف بتا دیا، پنجاب میں 18 دسمبر سے موسم سرما کی تعطیلات کا بھی اعلان، تعلیمی ادارے 1 جنوری تک بند رہیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا ٹویٹ، لکھا کہ سموگ کی صورتحال بہتر ہوئی، فی الحال کسی پابندی کا ارادہ نہیں۔ ایئر کوالٹی انڈیکس بھی تیزی سے بہتر ہونے لگا۔ سروسز ہسپتال کی 3 منزلہ عمارت کا ایک حصہ گر گیا، زیر تعمیر عمارت خالی تھی، ایک بلاک تعمیر کیا جا رہا تھا۔ صوبائی وزیر ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، معاملے کی تحقیقات کرائیں گے۔ ڈی سی رافیہ حیدر بھی موقع پر پہنچی۔ ہسپتال کی مرکزی عمارت کا خالی کرایا گیا 3 منزلہ بلاک گر گیا۔ سروسز ہسپتال کی مین بلڈنگ میں تزئین و آرائش کا کام جاری تھا کہ اچانک آئی وارڈ اور بچہ وارڈ کی 3 منزلہ عمارت کا ایک حصہ گر گیا۔ سروسز ہسپتال کے ایم ایس کے مطابق عمارت میں شارٹ سرکٹ ہوا، تمام مزدور باہر نکالے جس کے کچھ دیر بعد عمارت گر گئی۔ سروسز ہاسپٹل کی انڈر ریویمپنگ کنسٹرکشن تھی، ٹھیکیدار کے بقول صبح جب لیبر کام کر رہی تھی تو اس میں آگ لگی اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنی لیبر کو اس نے نکال دیا، پھر ساری بلڈنگ میں دھواں پھیل گیا اور جب سارے بندے باہر نکل گئے تو اس کے بعد یہ 4 منزلہ بلڈنگ کولیپس کر گئی ہے۔ ٹھیکیدار کی جو لیبر لگی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری پوری ہے۔
रेस्क्यू ने मौका पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। गिरने वाली इमारत के दीगर हिस्सों को भी सील कर दिया गया है। रिवैम्पिंग का काम भी रोक दिया गया। लाइफ लोकेटर्स के जरिए तलाश किया गया मगर जिंदगी के कोई आसार नहीं मिले। 5 घंटों में इमारत को क्लियर कर दिया गया। जब यहाँ पहुँचे तो उस वक्त काफ़ी क्योस था। रेस्क्यू ने पहुँच के इस सिचुएशन को मैनेज किया और उसके बाद जो है जब कॉन्ट्रैक्टर और जब मजदूरों के इंटरव्यू किए गए तो वहाँ पे पता चला कि इस इंसिडेंट पे किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं है, ना ही कोई जख्मी है, ना ही कोई डेड है। सूबाई वजीर सेहत, कमिश्नर और DC लाहौर ने सर्विसेज अस्पताल का दौरा किया। डॉक्टर जावेद अकरम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वाक़े की इंक्वायरी के लिए आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई है। और ये काफ़ी बोसीदा एरिया था और 10:45 पे एकदम यहाँ धुआं फैला है सबसे पहले, और अल्लाह का शुक्र है कि वो एक वार्निंग साइन था और उसी वक्त मज़दूरों ने निकलना शुरू कर दिया जैसे ही धुआं फैला है। और थोड़ा सा उधर कोई हल्का सा ब्लास्ट की भी सुनवाई है। जो बाकी लोग थे वहाँ काम कर रहे वो सब एवैक्यूएट हो गए। रेस्क्यू के 60 रेस्क्यूज ने ऑपरेशन में भारी मशीनरी के जरिए मलबे को क्लियर किया, जबकि अस्पताल की ऑक्सीजन सर्विस भी वाक़े के बायस मुअत्तल हुई, जिसको फौरी तौर पर बहाल कर दिया गया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ अली साही, सिटी 42। दूसरी जानिब आपको बताएं कि टीचिंग अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हटधर्मी आज भी बरकरार रही। आउटडोर में हड़ताल का चौथा रोज़। मरीजों का इलाज बदतरीन तातुल से दो चार, हज़ारों मरीज दर बदर। अस्पतालों की इंतजामिया इलाज मुआलजे की फ्राहमी बहाल ना करवा सकी। अस्पतालों के आउटडोर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल का चौथा रोज है। यंग डॉक्टर्स अपनी हटधर्मी पर कायम हैं। हड़ताल के बायस मरीजों का इलाज नहीं हो रहा। टीचिंग अस्पतालों में आने वाले हजारों मरीज इलाज न मिलने पर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। नर्सेस और पैरामेडिक समेत सीनियर डॉक्टर्स भी आउटडोर में मौजूद न होने से इलाज की फराहमी बुरी तरह मुतासिर है, लेकिन अस्पतालों की इंतजामिया इलाज की फराहमी ताहाल बहाल नहीं करवा सकी। YDA का कहना है जब तक गुजरात में कत्ल होने वाले डॉक्टर ज़िशान अनवर के कातिल गिरफ्तार नहीं होते और महकमा सेहत डॉक्टर्स के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला बंद नहीं करता, एहतजाज और हड़ताल जारी रहेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 289 रुपये 71 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 82 पैसे फी लीटर कमी। मट्टी के तेल की नई कीमत 201 रुपये 16 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपये 52 पैसे फी लीटर कमी। लाइट डीजल की नई कीमत 175 रुपये 93 पैसे मुकर्रर। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 289 रुपये 71 पैसे मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 82 पैसे फी लीटर कमी। मट्टी के तेल की नई कीमत 201 रुपये 16 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपये 52 पैसे फी लीटर कमी की गई है। लाइट डीजल की नई कीमत 175 रुपये 93 पैसे, जबकि वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। LPG की कीमतों में इजाफा, नोटिफिकेशन जारी। LPG 3 रुपये 82 पैसे फी किलो महंगी, जबकि LPG की नई कीमत 254 रुपये 86 पैसे फी किलो मुकर्रर। LPG का घरेलू सिलेंडर 45 रुपये महंगा हो गया। LPG के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 3007 रुपये मुकर्रर। ओगरा ने दिसंबर के लिए LPG की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बताएं कि LPG की कीमतों में इजाफा, नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG 3 रुपये 82 पैसे फी किलो, जबकि LPG की नई कीमत 254 रुपये 86 पैसे फी किलो मुकर्रर। LPG का घरेलू सिलेंडर 45 रुपये महंगा। LPG के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 3007 रुपये मुकर्रर। ओगरा ने दिसंबर के लिए LPG की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शहर की ओपन मार्केट में अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला बरकरार। यूटिलिटी स्टोर्स पर उल्टी गंगा बहने लगी। ओपन मार्केट की निस्बत यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 15 रुपये फी किलो महंगी बिकने लगी है। शहर की ओपन मार्केट में इशाए खुर्दनोश की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। यूटिलिटी स्टोर पर उल्टी गंगा बहने लगी। शहर की ओपन मार्केट में चीनी 10 रुपए कमी से 140 रुपए फी किलोग्राम हो गई। दूसरी जानब यूटिलिटी स्टोर पर चीनी 15 रुपए फी किलो महंगी 155 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त जारी है। तो ये इसमें चीनी महंगी है, अभी जो है ना वो 155 है, बाहर जो है ना 15 रुपए कम है। मतलब है इस तरह जो है ना और चीज़ें भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा हैं और मार्केट में कम है।
ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 2800 से जायद पर बेचा जा रहा है और चक्की आटे की कीमत 175 रुपए फी किलोग्राम की बुलंद तरीन सतह पर बरकरार है। ओपन मार्केट में घी और ऑयल की कीमतों में 20 रुपए फी किलोग्राम की कमी हुई, नई कीमत 550 रुपए हो गई। दालों और बेबी फूड आइटम्स की कीमतों में 10 से 150 रुपए तक कमी हुई है। शहरियों ने पंजाब हुकूमत से आटे की कीमतों में कमी के लिए इकदाम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के पाबंदी के बावजूद लाहौर में दर्जनों असातिज़ा के तबादलों का इंकिशाफ। असातिज़ा यूनियन ने आर्जी तबादलों पर फिलफोर पाबंदी आयद करने का मुतालबा कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से पाबंदी के बावजूद लाहौर में दर्जनों असातिज़ा के मेरिट के खिलाफ तबादलों का इंकिशाफ हुआ। पंजाब हुकूमत की जानिब से तबादलों पर पाबंदी आयद है। तबादले एक स्कूल से दूसरे स्कूल में 90 रोज के लिए किए जा रहे हैं। तबादले से फारिश की बुनियाद पर असातिज़ा के इंतखाब करदा स्कूल में किए जा रहे हैं। असातिज़ा के तबादले सिर्फ 90 रोज के लिए स्टूडेंट टीचर्स इशू की बुनियाद पर किए जा सकते हैं, लेकिन तबादलों के वक्त मेरिट की मुकम्मल तौर पर खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं। ज्यादातर असातिज़ा के तबादले सियासी बुनियादों पर किए गए हैं। असातिज़ा यूनियन का कहना है कि जरूरतमंद असातिज़ा के तबादले नहीं किए जा रहे। CEO एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर का कहना है कि तमाम तबादलों मेरिट की बुनियाद पर किए गए हैं। मेरिट के खिलाफ तबादले करवाने वाले असातिज़ा के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। FBR ने शुगर इंडस्ट्री में टैक्स चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन करने का फैसला कर लिया। सेल्स टैक्स में चोरी पर मालिकान समेत मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। FBR की जानिब से मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से शुगर इंडस्ट्री में टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। शुगर मिल्स की सेल्स और स्टॉक का रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए मॉनिटरिंग का अमल तेज कर दिया गया है और सेल्स टैक्स चोरी रोकने के पेश नजर डाटा मुरतब करने के लिए टीमें मुतहर्रिक हो गई हैं। FBR की टीमों ने तमाम शुगर मिल्स में चीनी के स्टॉक और मिल्स के अहाते से बाहर जाने वाली चीनी का रोजाना की बुनियाद पर रिकॉर्ड मुरतब करने का अमल भी शुरू कर दिया है और इस मॉनिटरिंग के दौरान सेल्स टैक्स में चोरी साबित होने पर मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शुगर मिल से बाहर जाने वाली चीनी की बोरियों पर टैक्स स्टैंप चिस्पा न होने की सूरत में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सोशल सिक्योरिटी मुल्तान रोड अस्पताल में कैंसर की अद्वियात में खुदबुद का इंकिशाफ। 3 माह गुजरने के बावजूद इंक्वायरी में कोई पेशरफ्त ना हो सकी। फार्मासिस्ट मोहम्मद इब्रार पर इंक्वायरी लगाई गई थी। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने 40 लाख रुपए की अद्वियात के गबन की तहकीकात का हुक्म दिया। नाकिस HM, IS और ड्रग स्टोर में नाकिस इंतजामात के बायस मजीद अद्वियात में खुदबुद का खदशा मौजूद है। अस्पतालों में डायरेक्ट खरीदारी की पॉलिसी के बायस खुदबुद केसेज में इजाफा देखने में आया है। मिल्लत पाक से लड़की को तावान के लिए अगवा करने वाले 4 मुलजमान पकड़ लिए। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनोश मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं कि मरकजी मुलजम और मगविया एक साथ पढ़ते थे। बड़ा मसला बन जाता है और एक बच्ची का मामला था। सो वी वर क्वाइट केयरफुल एट द सेम टाइम बिकॉज वी डिड नॉट डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन जो बड़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसका प्योरली जो मकसद था वो पैसे ही लेना था और आगे से इसकी डिफरेंट स्टोरी ये थी कि मुझे आगे से किसी को पैसे देने थे। तो कमरे में इसको बंद किया हुआ था। ये लोग गए हैं, उसको ताला तोड़ के दरवाज़ा खोल के बाजियाब कराया। तो पता था सारी फैमिली इन्वॉल्व थी। देखिए एक घर के अंदर ले जा के बच्ची को ऊपर वाले पोर्शन में बंद करना, इन सब के नॉलेज में था। इन्होंने बहुत रेजिस्ट किया है पुलिस को। वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, अपने बेटे के बारे में कोई वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे थे। दे वर इक्वली इन्वॉल्व इन दिस। तो दैट सिचुएशन बिल्कुल। शहर की अदालतों में दिन भर होने वाले केसेस की समातों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। खदीजा शाह की नजरबंदी और पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने नजरसानी पर पंजाब हुकूमत के फैसले के मुतालिक रिपोर्ट कल पेश करने की हिदायत कर दी। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया, खदीजा शाह के नजरबंदी ऑर्डर काबीना में मुख्तसर डिस्कस हुए हैं और वो इस पर फैसलन डिस्कस करना चाहते हैं, लिहाजा अदालत मजीद 4-5 रोज की मोहलत दे। खदीजा शाह के वकील ने मजीद मोहलत की दरखास्त की मुखालफत की। अदालत ने सिर्फ 1 दिन मोहलत देते हुए केस पर मजीद समाअत कल 1 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 33 नए मुलजमान समेत जिना हाउस हमला केस में 145 मुलजमान की दरखास्त जमानत पर समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन से मुकदमा का रिकॉर्ड तलब कर लिया। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि जिना हाउस केस में नए मुलजमान की शनाख्त परेड और तफ्तीश जारी है। रिकॉर्ड आइंदा समाअत पर पेश कर दिया जाएगा, जिस पर अदालत ने मजीद समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी।
जिला हाउस हमला केस इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तार 4 नए मुलजमान की जिस्मानी रिमांड में 4 दिनों की तौसीक कर दी। तफ्तीशी अफसर ने कहा मुलजमान का फोटोग्रामेटिक टेस्ट अभी नहीं हुआ, मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने मुलजमान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया और 4 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने रासिख इलाही की कंपनी अल ज़हूर के मुलाजमीन की तनख्वाहें और जानवरों की खुराक के लिए रकम जारी करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने अल ज़हूर कंपनी की दरखास्त पर समाअत की, जिसमें कंपनी के फंड्स मुंजमद करने के इक़दाम को चैलेंज किया गया। अदालत ने FIA को फंड्स जारी करने की हिदायत कर दी। अदालत ने FIA को तहकीकात जल्द मुकम्मल करने का भी हुक्म दे दिया। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्ती करने और मोहम्मद खान को तरक्की देने का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद ने परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीक कर दी। अदालत में बताया गया परवेज इलाही को पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्ती करने और सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को तरक्की देने के 2 अलग अलग केसों में जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा रखा है। सारिफ अदालत में हाफिजाबाद के कमरो रहमान ने एडिस कंपनी गुलबर्ग के खिलाफ 2,25,000 रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया कि उसने एडिस कंपनी की बनी शर्ट और ट्राउजर खरीदा जो नाकिस कपड़े के दिए गए और एक ही धुलाई में खराब हो गए। कंपनी को तब्दील करने का कहा तो उसने तब्दील करने से इनकार कर दिया। अदालत के रजिस्ट्रार ने जज तैनात न होने की वजह से दरखास्त गुजार के वकील को 26 दिसंबर को इब्तिदाई बहस की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। गवर्नर पंजाब से चाइनीज पुलिस के वफ्द की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया है। गवर्नर बलीगुर रहमान से डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिक्योरिटी टेन जोंग शेंग की क़यादत में चीनी सूबे जियांगसू के पुलिस के वफ्द ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान और चाइना बाहमी एतमाद, मोहब्बत और बेमिसाल दोस्ती के रिश्ते में बंधे हैं। मुख्तलिफ तरबीती कोर्सेज और पुलिस एहलकारों के बाहमी तबादलों से पुलिस एहलकारों की इस्तेदादकार में इजाफा होगा। पंजाब पुलिस और जियांगसू सूबे के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत से दोनों ममालिक और इदारों के दरमियान 2 तरफा ताउन को फ़रोग मिलेगा। इस तरह के वफूद के बाहमी तबादलों से मॉडर्न पुलिसिंग और एक दूसरे से सीखने का मौका मिलेगा। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा के यूथ कोऑर्डिनेटर्स की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में यूनियन काउंसिल की सतह तक यूथ कोऑर्डिनेटर्स की तकर्री के अमूर ज़ेर बहस आए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में तंजीमी अमूर और आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से जायज़ा भी लिया गया। मॉडल टाउन में चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा को कंगाल सूबा बना दिया गया। 10 साल में BRT और बिलियन ट्री सुनामी के नाम पर खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन करप्शन और लूटमार जारी रही। 10 साल में 350 डैम तो ना बन सके, कौम को कदम कदम पर डैम फूल बनाया गया है। मुस्लिम लीग नून के पार्टी टिकटों की तकसीम के लिए अली परवेज मलिक की ज़ेर सदारत कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। पार्टी की आदत की हदायत पर साबिक MNA अली परवेज मलिक ने पार्टी टिकट से मुतअल्लिक उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए। मुस्लिम लीग नून के पार्टी टिकटों की तकसीम के लिए अली परवेज मलिक की ज़ेर सदारत कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ। पार्टी की आदत की हदायत पर साबिक MNA अली परवेज मलिक ने पार्टी टिकट से मुतअल्लिक उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए। शेखपुरा से सूबाई असम्बली के हल्का PP 138, PP 139 और PP 140 से पार्टी टिकट की दरख्वास्त देने वालों के इंटरव्यूज़ किए गए। PP 138 से चौधरी मोहम्मद सज्जाद, मोहम्मद अब्दुर्रऊफ, तारिक महमूद डोगर और फ़याज़ हुसैन भट्टी के इंटरव्यूज़ किए गए। PP 139 से चौधरी खलील अहमद विर्क, मियां अब्दुर्रऊफ, इफ्तिखार हुसैन, समीउल्लाह और शौकत हयात के इंटरव्यूज़ भी किए गए। PP 140 से अमजद नज़ीर भट्ट, हाजी मोहम्मद नवाज़ और चौधरी मोहम्मद आरिफ खान संधेला के इंटरव्यूज़ किए गए। कोऑर्डिनेशन कमेटी अपनी तजावीज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड को पेश करेगी। नून लीगी रहनुमा हशमत शाह के ज़ेर एहतमाम जलसा सैफ अल मलूक खोखर, फैसल खोखर, बिलावल खोखर की शिरकत। सैफ अल मलूक खोखर ने कहा कि नवाज शरीफ मुल्क व कौम की तकदीर बदल देंगे। नून लीगी रहनुमा हशमत शाह ने अवान टाउन में जलसे का एहतमाम किया। सैफ अल मलूक खोखर ने कहा कि नवाज शरीफ मुल्क व कौम की तकदीर बदलेंगे, इलेक्शन में जीत के लिए पुरुम्मीद है। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगी। हशमत शाह ने कहा कि मियां नवाज शरीफ मुल्क और कौम की तकदीर संवारेंगे। नवाज शरीफ फिर से वज़ीर आज़म बनकर अवामी खुशहाली का दौर वापस लाएंगे। जलसे में मलिक काशिफ खोखर और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर सनअत व तजारत एहसन तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला की क़यादत में दौरे चीन के दौरान तय पाने वाले मुआहदों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। गुलबर्ग में सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत एहसन तनवीर की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में वज़ीर आला की क़यादत में पंजाब हुकूमत के वफ़द के दौरे चीन के दौरान तय पाए मुआहदों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। सिस्टर सिटीज़ में ज़राअत, सियाहत और दीगर शोबों में 2 तरफा ताउन के इम्कानात पर गौर भी किया गया। 2 तरफा ताउन बढ़ाने के लिए सिस्टर सिटीज़ को काउंसिल्स बनाई जाएंगी, जबकि सूबाई वज़ीर ने साहिवाल और बहावलपुर के डिप्टी कमिश्नर सनअत व तजारत से बाहमी ताउन बढ़ाने के हवाले से तजावीज़ भी तलब कर ली।
IPR इन्फोर्समेंट कस्टम्स की जुरिस्डिक्शन के तहत जाली इंपोर्टेड अशिया को जब्त करने के लिए अफसरान और एहलकारों के लिए तरबीती वर्कशॉप। बेलम रमज़ान, हसन इरफान खान समेत निजी और सरकारी इदारों के नुमाइंदगान की शिरकत। अफसरान और एहलकारों को उनके इख्तियारात से आगाह किया गया। इन्फोर्समेंट कस्टम्स की जुरिडिक्शन के तहत जाली इंपोर्टेड अशिया को जब्त करने के लिए अफसरान और एहलकारों के लिए फ्लैटीज होटल में तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन्फोर्समेंट सेंट्रल लाहौर बेलाम रमजान, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हसन इरफान खान ने शिरकत की। निजी और सरकारी अदारों के नुमाइंदगान शरीक हुए। बेलाम रमजान ने कहा, ये डायरेक्टोरेट एक कस्टम्स का ही महकमा है जिसकी जुरिडिक्शन में तमाम जाली इंपोर्टेड अशिया को जब्त करना शामिल है। ऐसी तमाम जाली शुदा अशिया जो कि इम्पोर्टेड होती हैं उनको ज़ब्त करना, उन पे नाकाबंदी करना, जो कि मुज़र सेहत हैं या इम्पोर्टर जो जेन्युइन ट्रेडमार्क इम्पोर्टर उसकी साख को मजरू करती हैं। सेमिनार में अफसरान और एहलकारों को उनके इख्तियारात से भी आगाह किया गया। कस्टम्स IPR डायरेक्टरेट ने हमें रिक्वेस्ट करी थी कि कस्टम ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करना है, तो हमने मैं सीनियर पार्टनर हूँ इरफान का, तो वी कोलैबोरेटेड विद कस्टम्स और हमने जो है वो कस्टम लॉज की एक्चुअल जो फ्रॉम अ लीगल पर्सपेक्टिव है वो इंटरप्रिटेशन दी है। सेमिनार में DG, डायरेक्टर्स, कलेक्टर्स, डिप्टी कलेक्टर्स और असिस्टेंट कलेक्टर्स समेत दीगर सरकारी और प्राइवेट अदारों के नुमाइंदगान भी शरीक हुए। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा कलीम अख्तर, सिटी 42। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में सेमिनार का इनेकाद। हेमोफीलिया के मरीजों की बड़ी तादाद की शिरकत। वजीर सेहत पंजाब जावेद अकरम ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। डिसऑर्डर कम्युनिटी के उन्वान से चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स गुलबर्ग में सेमिनार हुआ। हेमोफीलिया पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफीलिया ने एहतमाम किया। वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, डॉक्टर शहला, डॉक्टर फिलिप डी मोरोलोज, डॉक्टर सीजर ग्रेदो ने खुसूसी शिरकत की। हेमोफीलिया के मरीज बच्चों और वालदैन की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। मरीज और वालदैन को हेमोफीलिया से बचाव के बारे में आगाही दी गई। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने शिरकत से गुफ्तगू में कहा, हेमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जो जीन से मुंतकिल होती है। इस बीमारी के साथ जीना मुमकिन है। हेमोफीलिया जो है ये एक ऐसी बीमारी है जो जीन्स की वजह से नमूसी है और इसकी कोई ऐसी स्क्रीनिंग भी नहीं की जा सकती, कोई इसको क्योर भी नहीं किया जा सकता। इसके साथ किसी को अगर हीमोफीलिया है तो जिंदा रहना पड़ता है। HPWS की सदर डॉक्टर शहला का कहना था कि लोगों को पता ही नहीं था हेमोफीलिया क्या है। हुकूमत को इस बीमारी के इलाज से मुताल्लिक किरदार अदा करना चाहिए। मुझे अपनी डायग्नोसिस भी 27 साल की उम्र में पता चली जब मैं बाहर मुल्क चली गई। वहाँ जाके मुझे पता चला कि मुझे एग्जैक्टली हीमोफीलिया की कौन सी किस्म है, मेरा असल इलाज क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर अकेलापन, मैंने कभी अपने जैसा दूसरा नहीं देखा था। तो एक तो खैर मेन चीज़ तो ये है कि भी जान बचाएं और पेन से छुटकारा पाएं, डिसेबिलिटी से छुटकारा हासिल करें। सदर वर्ल्ड फेडरेशन हेमोफीलिया डॉक्टर सीजर ग्रेडो ने कहा, मेरा बेटा हेमोफीलिया का मरीज है, मैंने इसीलिए हेमोफीलिया की बीमारी से लड़ने का बेड़ा उठाया। Hemophilia nowadays has many other options that maybe in 10 years ago we didn't have. So that is part of your hope. And we need to know even more than from you in order to implement the right strategy in order to help. हेमोफीलिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों के वालिदैन ने इलाज का बेड़ा उठाने पर डॉक्टर शहला का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर्स को खुद भी नहीं पता कि ये क्या मसला है और कैसे ट्रीट करना है इसे, तो मैं काफ़ी हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स पे लेके जाता रहा तो किसी को समझ नहीं आ रही थी। और अनटिल अनलेस जब तक डॉक्टर शहला नहीं मिली मुझे तो सब अपना एंटीबायोटिक्स लगा रहे थे, पैनाडोल दे रहे थे बुखार वगैरह के लिए। मेरे बड़े भाई को ज़्यादा चोट लगी तो लाहौर में आए, तो तब जो है ना मतलब पता चला कि हीमोफीलिया, तो वो पम्फलेट साथ लेके गए तो मैंने घर में पढ़े तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हुआ कि हीमोफीलिया का मुझे मसला है। हेमोफीलिया पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी में 1112 बच्चे रजिस्टर्ड हैं जो कि इलाज करवा रहे हैं। कैमरामैन जमील अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 42 लाहौर। मास्टर ग्रुप के मल्टी आर्थो और शेप्स के ताउन से 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद। मल्टी आर्थो की जानिब से फ्री कंसल्टेंसी सेशंस भी किए गए। डॉक्टर्स ने शुरका को सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरे भी दिए। सीनियर हेल्थ केयर मैनेजर अवैस इफ्तिखार का कहना था कि मास्टर ग्रुप सेहत मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स तैयार कर चुका है। ग्रुप
ग्रुप के हेल्थ केयर डिपार्टमेंट मल्टी आर्थो और शेप्स के ताउन से शेप्स जिम गुलबर्ग में 2 रोजा वर्कशॉप मुनक्किद की गई। शेप्स के मेंबरान ने मल्टी आर्थो की प्रोडक्ट्स में खूब दिलचस्पी ली। मल्टी आर्थो की मसनूआत में कमर दर्द से बचने के लिए ऑर्थो मैट्रेस, कॉन्टोर पिलो, केयर शीट, बच्चों के कम्फर्ट समेत दीगर अशिया शामिल हैं। सीनियर हेल्थ केयर मैनेजर मास्टर ग्रुप अवैस इफ्तिखार ने बताया कि मास्टर ग्रुप वक्त के साथ साथ प्रोडक्ट्स में जिद्दत ला रहा है। We have a wide range of foam mattresses and spring mattresses, and they are which have excellent quality and which very good having very good features, और जो बेसिकली अच्छी स्लीप। मैं अमूमन बात करता हूँ कि इंसान अपनी ज़िंदगी का जो 1/3 पोर्शन है वो सो के गुजारता है। मास्टर ग्रुप के मार्केटिंग मैनेजर नदीम का कहना था कि शेप्स के मेंबरान के लिए 10% डिस्काउंट पर प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं। हमारा मकसद अच्छी और आरामदेह नींद के लिए प्रोडक्ट्स फराहम करना है। हम लोगों ने 2 दिन के लिए हमारी ये एक्टिविटी थी यहाँ पर विद द कोलैबोरेशन ऑफ शेप्स एंड मास्टर मल्टीफॉर्म, और इसमें हम लोगों ने यहाँ पर अवेयरनेस के लिए ये एक्टिविटी प्लान की थी। इसमें ये था कि जो शेप्स के मेंबर थे उनके लिए हम लोगों ने 10% डिस्काउंट जो है वो ऑफ़र किया था। कारोबारी अफराद ने वर्कशॉप के इनकाद को सराहा। इनका कहना था कि मास्टर मल्टीफॉर्म की प्रोडक्ट्स हमेशा कमाल की होती हैं। आप सारा दिन जो है वो एक चेयर पे बैठे रहते हैं, काम करते हैं, तो एज अ बिजनेसमैन समटाइम्स आपकी बैक बहुत दर्द करती है, और मल्टीफॉर्म की जो सारी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत क्वालिटी की होती हैं डेफिनेटली। तो ये शेप्स में आए हुए हैं, तो मैंने इनको देखा, इनका आई हैव ट्राइड द कुशन एज वेल, तो आई फाइंड इट वेरी कंफर्टेबल। 2 रोजा एक्टिविटी में माहिरीन सेहत की जानिब से मुफ्त सेशंस भी मुनक्किद किए गए। कैमरामैन जमील अहमद के साथ आदियाना, सिटी 42। यूरोपियन एजेंसी के वफ्द का वासा लाहौर का दौरा। यूरोपियन मिशन की तरफ से वासा लाहौर के लिए 12 मिलियन यूरो की इमदाद मंजूर कर दी गई है। एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत वासा हेड ऑफिस में इजलास हुआ। यूरोपियन एजेंसी के वफ्द डेनिस डेजली और थ्योंट विंसेंट और एसन प्राचा समेत दीगर ने शिरकत की। यूरोपियन मिशन के साथ एसबेला बैनुल-अक़वामी कंसल्टेंट की टीम भी शरीक हुई। बैनुल-अक़वामी कंसल्टेंट एस्पीलिया के माहिरीन और वासा लाहौर के माहिरीन के माबैन प्रोजेक्ट के हवाले से मुशावरत भी हुई। मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तान आए सिख यात्रियों ने डबल डेकर बस पर लाहौर की सैर की। सिख यात्रियों ने कहा कि सुना था कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा नहीं हुआ। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जबकि प्रोजेक्ट इंचार्ज इशफाक अहमद डोगर ने ढोल की थाप पर सिख यात्रियों का इस्तकबाल किया। सिख यात्रियों को डबल डेकर बस पर लाहौर की सैर करवाई गई। मेहमान लाहौर के नज़ारों और मौसम से लुत्फ़अंदोज़ भी हुए। इस मौके पर सिख यात्रियों ने कहा कि सुना था कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा नहीं हुआ। ये बात बिल्कुल दुरुस्त मालूम होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम मटीरियल साइंस में पेशरफ्त के मौजू पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का आखिरी रोज़ तहकीकी मुकालाजात भी पेश किए गए। जबकि शोबा फिज़िक्स यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन ने मटीरियल साइंस में पेशरफ्त के मौजू पर मरकज़ी कैंपस टाउनशिप में चौथी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। वीसी डॉक्टर आलिम सईद की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज़ दुनिया भर से नामवर मुहक्किकीन और साइंसदानों ने मजमूई तौर पर 120 से ज़ायद तहकीकी मुकालाजात पेश किए। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज नसीम अहमद और दीगर ने शिरकत की। ट्रैफिक हादसात की रोकथाम लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी और ट्रैफिक पुलिस के इश्तराक से तलबा व तालिबात के लिए ट्रेनिंग कोर्स का इनेकाद किया गया है। जबकि हादसात की रोकथाम के लिए ट्रेनिंग कोर्स का एहतमाम हुआ। तकरीब में वाइस चांसलर लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी मेजर रिटायर्ड खलील डार, एडिशनल IG ट्रैफिक पुलिस मिर्जा फारान बेग समेत फैकल्टी और तलबा ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए खलील डार ने कहा कि ट्रैफिक हादसात की रोकथाम में तलबा व तालिबात अपना किरदार अदा करें। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।